ગુડ મોર્નિંગ. બધા સારું છે? પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. ઓકે, અમે બધા પરિવાર તમારા મધ્યે આવીને બહુ ખુશ છે. મારા એ બીજા વખત તમારા ચર્ચમાં છે. કેટલા લોકો ઓળખો છો? કોઈ નહીં ઓળખતા? બોયા સેડવા. હા, આરજી ગામિત સાહેબ જ્યારે यहाँ હતા આ સમયમાં હું એક વખત ત્યાં સંદેશ આપ્યા હતા, પણ બધા ભૂલી ગયા. કોઈ વાંધો નહીં, આજથી નહીં ભૂલવાનું અમે. ઓકે, સારું. અને પ્રભુની મહાનામની વિશેષ ધન્યવાદ આપું છું, કેમ કે આજની સુંદર દિવસ અમને દરેકને એના ભવનમાં આવવા માટે મદદ કર્યા છે. અને વિશેષ કરીને દાહોદ મંડળીને આભાર માનું છું. અમે એ સમય આપ્યા છે બાળકો મધ્યે અને તમારા મધ્યે આજની દિવસની સેવા આપવા માટે. એના માટે પ્રભુની વિશેષ આભારી છીએ. અને અમે ફક્ત ગુજરાતી નથી, અમારા વતન તો ઓડિશા છે, અમે ઉડિયા ભાષી છે, પણ અમે પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ કે ગુજરાતીમાં બોલવાનો. પણ ઘણા બધા ભૂલચૂક થાય છે, માફ કરજો. અત્યારે આજની સંદેશ પણ હું ગુજરાતીમાં નથી બોલવાનો, હિન્દીમાં બોલવાનું છે. તો તમે હિન્દીથી થોડું એડજસ્ટ થાવ એવી મારો વિનંતી છે. દુનિયામાં અમે જો અલગ અલગ ચર્ચીસમાં જાઓ તો 3 અલગ અલગ ટાઈપની લોકો મળી રહે છે. અને એ લોકો કોઈ ચર્ચમાં આવે છે તો ઊંઘવા માટે. ઘણા બધા લોકો ચર્ચ એના માટે આવે છે કે એ સરસ જગ્યા છે, એ ઊંઘી જાય છે. તો એ લોકોને નામ છે સોતા. તમારામાંથી કોઈ એવું છે? બીજા લોકો છે જો ચર્ચમાં આવે છે એ રડે છે, રડવા લાગે છે. એવી ટાઈપની પણ અમે જોઈએ છીએ ચર્ચમાં. ઘણા બધા લોકો આવે છે, ખાલી જ્યારે આરાધના શરૂ થાય ત્યાંથી રડવા લાગે. તો એ રોતાવાળા લોકો છે. અને ત્રીજું વ્યક્તિ છે એ પોપટ જેવા છે. પોપટ જેવી દરેક શબ્દ તમે જો બોલશો એ શબ્દ એ પણ બોલે છે. તો એ છે તોતા. હરેક ટાઈપની લોકો છે. જો આ 3માંથી નથી, અને એ લોકો બહુ ખતરનાક છે. એ ખતરનાક લોકો કોણ છે ખબર છે? એ વધારે પાછા બેસે છે, આગળ તો નહીં બસતા. પાછા બેસે છે અને દરેક વસ્તુ ધ્યાનમાં લે છે. એને એ શું બોલે છે એના બરાબર રીતે હિસાબ રાખે છે, અને પછી એ લોકોને ઇવાલ્યુએટ કરે છે. જો અમે પાન ખાવે તો અહીંયાથી બટલ નટ આવે ને સરોતા, જો એના કટ કરે છે. એવી ટાઈપના લોકો છે. તો 4 અલગ અલગ વ્યક્તિ અમે ચર્ચમાં જોઈએ છીએ. આજે તમે કઈ ટાઈપની વ્યક્તિ મને ખબર નહીં, પણ એ 4માંથી તો તમે એક ક્યાંય પણ સામેલ થઈ શકો છો. ઓકે, મારા સંદેશ એ નથી, તમને ખાલી જાગવા માટે એ સંદેશ કહ્યું કે તમે સૂઈ ના જાઓ. ઓકે, તો મારા સંદેશ એ છે કે જો વચન અમે વાંચ્યા ત્યાંથી હું બોલવાનું છે. અને જો 2 શબ્દ છે, ડીડાકે અને ખેરુગમાં. ડીડાકે એટલે ટીચિંગ, ખેરુગમાં એટલે પ્રીચિંગ. ઓકે, ચર્ચની અંદરથી ખેરુગમાં ના થાય, ચર્ચની અંદરથી ડીડાકે થાય છે અને ટીચિંગ. તો ચર્ચની બહાર જો થાય છે એ ખેરુગમાં પ્રીચિંગ.
તો આજ હું તમારા મધ્યે જો 3 આયત વાંચ્યા ત્યાંથી હું તમને બતાવવા ચાહું છું. એની અત્યારે હું હિન્દી બોલું છું, ગુજરાતી મારા બહુ ખરાબ થાય, તમને સમજણ નહીં પડે. हाँ, दैट विल बी गुड. ओके, थैंक यू. ओके, जो हमें पुनर्नियम जो आयत हमें पढ़ाई किया उसमें से मैं आपको बोलना चाहता हूँ. साथ साथ मत्ती की 18 आयत से भी बोलने के लिए कोशिश करूँगा. ठीक है, तो हम देखते हैं ये जो पुनर्नियम और व्यवस्था विवरण जिसको हम बोलते हैं उसमें एक नया कानून दिया गया है हर एक बार, इसीलिए उसको क्या बोला गया है, पुनर्नियम और व्यवस्था नियम. ड्यूट्रोनॉमी, ड्यूट्रो बोले तो सेकेंड, नोमेस बोले तो लॉ. दूसरा लॉ किसको दिया गया है, इस्राएल को दिया गया है. और जब हम 5वीं आयत को पढ़ते हैं ये व्यवस्था विवरण के, उसमें देखते हैं कि मूसा को क्या किया गया है, 10 आज्ञा ऑलरेडी दे चुके गए हैं. और इसमें फिर एक आज्ञा उनको दिया जा रहा है कि वो क्या करे, जब वायदे की देश में जाए उसके हिसाब से वो अपना बाल बच्चा रहने पाए. और हम यहाँ देखते हैं कि हे इस्राएल सुन, ऐसे बताया गया है. और इस्राएल को पुनर्बार इस बात को दोहराया दिया जा रहा है, क्योंकि जो देश में जा रहे हैं वो देश तो मधु और शहद में प्रवाहित देश है. तो ऐसे देश में जाने के लिए उन लोगों को कुछ चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा. उस ध्यान की बातों को बताया गया है. और हम देखते हैं बाइबल में इन एक्सोडस 20 निर्गमन 20 की आयत में देखते हैं कि हमें 10 आज्ञा को दिया गया है. और हमें ये पुनर्नियम द्वितीय विवरण की उसका 5 में देखा जाता है, तो यहाँ पे भी इस कमांड को दोहराया गया है. और हम देखते हैं कि बाइबल में 360 जैसा लॉज है, ये रिपीटेशन हुआ है, रिपीटेशन किया गया है. तो हम जब इस वचन को पढ़ते हैं हम यहाँ देखते हैं कि जो लोग दूसरों को सिखाते हैं उनके लिए 2-fold इंस्ट्रक्शन दिया गया है. और वो इंस्ट्रक्शन क्या है, सुन. इसमें लिखा गया है सुन, तीसरी कलम मिलकर गए सुन. सुनने का मतलब है कि ध्यानपूर्वक सुनना, ध्यानपूर्वक सुनना. सेंस ऑफ हियरिंग ये होना चाहिए, और सेंस ऑफ टच एंड सेंस ऑफ फीलिंग, इस टाइप का सुनने के बारे में इसमें बताया गया है. और इस टाइप के सुनने के बारे में बताया गया. लेकिन हियरिंग जो है एबिलिटी टू यूज़ आवर ईयर्स ओनली, खाली हमारा कान को लगा दे तो हो गया इसका हियरिंग. लेकिन सुनने का मतलब हमको क्या करना पड़ेगा कि ध्यानपूर्वक सुनना. हियरिंग, सेंस ऑफ टच, ये तमाम चीज़ को लेते हुए हमें इस चीज़ को सुनने के लिए बोला गया है. और जब हम इसमें देखते हैं 2-fold इंस्ट्रक्शन, पहला सुनना है, दूसरा ऐसे ही करने की चौकसी कर. मैं जो बात बोल रहा हूँ ऐसे करने की चौकसी कर, इस बात को इसमें बताया गया है. इसका मतलब ऑब्जर्व टू डू व्हाट द लॉर्ड सेज यू टू डू, परमेश्वर ने जो बोला है उसको करने के लिए आपको पड़ेगा. इस बात को यहाँ पे बताया गया है. लेकिन ये 2-fold इंस्ट्रक्शन के बाद 2-fold प्रॉमिस भी इसमें दिया गया है इस वचन में. 2 प्रॉमिस क्या है, तीसरी कलम की बी पार्ट में हम जब पढ़ते हैं, तेरे लिए भला हो. तेरे लिए क्या होगा, ये भलाई को उत्पन्न करेगा, भलाई को उत्पन्न करेगा. और तू क्या हो जाओगे, बहुत हो जाओगे, बहुत हो जाओगे. उस वायदा को देश में जाने से पहले इस नियम इसीलिए दिया गया क्योंकि जब ये लोग जा रहे थे इजिप्ट से जब वायदे की देश को जा रहे थे, इस समय में कई सारा लोग बुजुर्ग हो चुके थे, मर चुके थे, और वो लोग वायदा देश को नहीं पहुंच पाए थे. लेकिन उनकी बाल बच्चे अभी बड़े हो गए हैं और उन लोगों को ये 10 कमांडमेंट 10 कमांडमेंट्स के बारे में कुछ भी पता नहीं है.
तो इसीलिए ये ज़रूरी था कि मूसा को परमेश्वर ने दोबारा इस कमांडमेंट को दिया, ताकि वो उन लोगों को अच्छा रीति से क्या करे, तो बताए, और वो लोग वहाँ जाए तो क्या ना हो, वो विधर्मी लोगों के साथ जुड़ ना जाए, क्योंकि वो जो देश है वो बहुत सारे देवी देवता के मानने वाला देश है, और ऐसे देश में वो जब जा रहे हैं इस इंस्ट्रक्शन की बहुत ज़रूरत है। और इसमें हम देखते हैं कि जब ये लोग इस बात को ओवे करेंगे वो तो क्या हो जाएंगे, वो बहुत हो जाएंगे। और मूसा का मेन उद्देश्य ये है कि अपना लोगों जो है आत्मिक रीति से बढ़ोतरी को पाए, हेल्थ वाइज भी वो लोग बढ़ोतरी को पाए, और नंबर की रीति में से भी वो बढ़ोतरी को पाए। और ये है परमेश्वर की उद्देश्य उनकी जीवन के प्रति। और हम चौथी भी कलम में पढ़ते हैं, जब तो इसमें पढ़ते हैं कि हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर यहोवा एक ही है। और हम देखते हैं कि एक ही परमेश्वर के बारे में मूसा ने उसको जागरूक कर रहा है, क्योंकि वो जो देश था, जो देश है कानान की देश है, उसमें बहुत सारे देवी देवता को मानने वाला लोग हैं। और इसीलिए उसमें बता रहे कि हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर एक ही देव है, जो याहवे परमेश्वर है। याहवे परमेश्वर, द लॉर्ड ऑफ गॉड इज वन लॉर्ड, ही इज आवर गॉड एंड एलोहिम। यहाँ पे जो शब्द हिब्रू में इस्तेमाल किया गया है उसका अर्थ है एलोहिम गॉड, एंड हिज पावर एंड ऑथोरिटी ऑफ गॉड, ही इज ऑल्सो ए गॉड ऑफ जेहोवा। और वो जेहोवा परमेश्वर है। इसमें हम देखते हैं कि वो एलोहिम गॉड है। और सेकेंड भी हम देखते हैं कि क्योंकि वो ही परमेश्वर है, इसीलिए हमें उसको क्या करना है, प्रेम करना है, प्रेम करना है। और इस पांचवी कलम में जब हम पढ़ते हैं तो इसमें हम देखते हैं वो अपने परमेश्वर यहोवा को अपने सारे मन से, सारे जीव से, सारे शक्ति से और साथ प्रेम रखना। इसमें कई सारे बातों को बताया गया है कि विथ ऑल योर हार्ट परमेश्वर को प्रेम करना, पूरे हृदय के साथ परमेश्वर को प्रेम करना। और इसमें जो प्रेम की शब्द हिब्रू भाषा में लिखा गया है उसके मतलब लाबेब, लाबेब। ये आवर फिजिकल हार्ट्स आर एट द कोर ऑफ आवर फिजिकल बीइंग। हमारा जो शारीरिक हृदय जो है हमारा शारीरिक विंग्स को रिप्रेजेंट करता है। और इसमें हम इस बात को देखते हैं विथ ऑल योर सोल, और तुम्हारा सारे आत्मा से। और इसमें जो वर्ड यूज़ किया गया है उसमें निपेश बोल के इस बात को यहाँ पे बताया गया है। निपेश, निपेश का मतलब ये है, ड्यूटेरोनोमी 12:23 में हम देखते हैं कि जो शौल है हमारा खून में रहता है, खून में, और इसके लिए बाइबल में मना किया गया है कि तुमको खून को नहीं खाना है। तो इस बात को हम यहाँ पे देखते हैं। लेकिन तीसरी बात हम यहाँ देखते हैं विथ ऑल योर माइंड, सारे सामर्थ के साथ, सारे सामर्थ के साथ क्या करना, तो परमेश्वर यहोवा को प्रेम रखना। और इसमें जो वर्ड यूज़ किया गया है मेदो, मेदो जो है स्ट्रेंथ और पावर को बताता है, माइट और सामर्थ को बताता है। इस बात को हम देखते हैं और इसमें लिखा गया है। और ये अपना परमेश्वर को प्रेम करने के बारे में बताया गया। और इसमें जो प्रेम, अपना परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताया गया। और प्रेम की 6 अलग अलग टाइप है। हम गुजराती में बोले तो प्रेम ही है ना, हिंदी में बोले तो प्रेम ही है, लेकिन ग्रीक में इसकी अलग है, सेप्टुजेंट में उसका अलग है। और इसमें प्रेम जो शब्द है वो 6 प्रकार का प्रेम है। पहला जो है एरोस लव, जो सेक्सुअल लव से, जो पति पत्नी के बीच में रहता है, वही प्रेम को बताता है। दूसरा जो है फिलिया, फिलिया जो है फ्रेंडशिप प्रेम, एक दूसरे को जो फ्रेंड की तरफ से प्रेम करते हैं, इस बात को बताता है। तीसरा जो है आगापे, आगापे लव, आगापे लव मतलब परमेश्वर जो हमें प्रेम करता है उस प्रेम को बोला जाता है आगापे लव। लीडास,
लीडर्स जो प्रेम है वो प्लेफुल है और इस बात को हमें बताता है। और प्रगमा लॉन्ग लास्टिंग प्रेम, जो लंबे समय रहे तक जो प्रेम को रहता है उसको बोलते हैं। और फिलिस्तिया सेल्फ लव, और अपने आप में जो प्रेम करना, मिरर में जाके देखे हाँ मैं कितना सुंदर लग रहा हूँ, ऐसे टाइप का प्रेम है ना। कई लोग मिरर में जाते सजधज होते या देखते हैं इतना अच्छा लग रहे है ना, तो अपने आप को सराहना करना टाइप का प्रेम। तो हम बाइबल में देखते हैं कि 6 अलग अलग प्रकार का प्रेम, लेकिन यहाँ पे जो प्रेम की बात बताया गया है तो ये आगापे लव परमेश्वर से प्रेम रखने के बारे में बताता है। परमेश्वर जो प्रेम हमें करता है हमें भी उनको उसी प्रेम में करना है, इस बात को हम देखते हैं। और इसमें जब हम वचन 6 की आयत में 6 में पढ़ते हैं तो हम यहाँ देखते हैं कि सारे आज्ञाएं जो मैंने आज तुझे को सुनाता हूँ वो तेरे मन में बसे रहे, और तू इन अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना, और घर में बैठे, मार्ग में चलते, लेटते उठते इसका चौकस किया करना, और उन्हें अपना हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, और तेरी आँखों के बीच में टीके का काम करे, और उन्हें अपने अपने घर के चौखट के बाजू और अपने फाटकों पर लिखना। तो हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर की वचन को हर समय में बच्चों को पहुँचाने का ज़रूरत है, बैठे हुए, उठते हुए, चलते हुए, फिरते हुए। क्या एक परिवार के नाते हम ये तमाम चीज़ कर रहे हैं हमारा बाल बच्चे को, और खाली हम संडे स्कूल में छोड़ दिया और बोल दिया कि ये तो चर्च का काम है, चर्च हमारा बच्चों को आत्मिक रीति से बढ़ाएगा। एक सर्वे में ये बताया गया है कि जो बच्चे ज़्यादा प्रभु को ग्रहण करते हैं वो बच्चे अपना परिवार से जो शिक्षण को लेते हैं, अपना परिवार में जो बच्चे को ध्यान दिया प्रभु के बारे में बढ़ने के लिए, वो बच्चे जल्दी परमेश्वर को ग्रहण करते हैं। और इस बात को हम देखते हैं कि यहाँ पे इस वचन में लिखा गया है कि हमें हर समय में, हर परिस्थिति में, सोते हुए, उठते हुए, जागते हुए, हर एक रीति से प्रभु की वचन हमारा बच्चे को देना है। और इस बात को बाइबल हमें सिखाते हैं, और जब हम इस बात को हमारा बच्चे को सिखाएंगे, क्या होंगे, वो जो कानान देश है, तो वायदे को देश है, वो जहाँ कहीं भी जाए वो परस्परस होंगे, वो जहाँ कहीं भी जाएंगे वो क्या होंगे, बढ़ पाएंगे। यदि वो नहीं करेंगे तो क्या होंगे, वो नाश हो जाएंगे, वो नाश हो जाएंगे। और मैं दूसरी आयत में अभी आना चाहता हूँ, और इसमें हम देखेंगे कि मत्ती 18:1-14, और हम यहाँ देखते हैं मत्ती 18:1-14 में प्रभु की चेले लोग प्रभु यीशु के पास आके बोल रहे हैं कि हम में से सबसे बड़ा कौन है, स्वर्ग राज्य में सबसे बड़ा कौन है। और इस समय में प्रभु यीशु क्या करता है, एक बच्चे को अपना हाथ में लेता है और बोलता है, जब तक तुम इस बच्चे जैसे ना बनो तब तक तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर नहीं सकते हैं। इसका मतलब बच्चे जो है स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकते हैं, बच्चे जो है परमेश्वर की राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन ये विवाद क्यों है इस चेले लोगों के बीच में? जब हम इस चेले लोगों के बारे में पढ़ते हैं, वो लोग कई समय से इस विवाद में हैं, और उन 12 चेले में से ये डिस्कशन बात में चलता रहता है कि हमारे में से सबसे बड़ा कौन है। 2 चेले जो अपना मम्मी को भी लेके आ गए थे इस विवाद में कि हमें से एक दोनों को तो कहीं ना कहीं प्रभु यीशु की दाहिने हाथ में बैठने के जगह मिलना चाहिए। वो कौन थे? कौन थे वो जो अपना मम्मी को लेके आए थे पोजीशन मांगने के लिए? कौन थे? जेम्स और कौन? याकूब, है ना। क्यों लेके आए थे? उनको पोजीशन की जरूरत था, है ना। पतरस बोल सकता था, हाँ मैं तो यीशु मसीह के पास रहता हूँ, मैं भी बड़ा हूँ। और जो खजांची, पैसे रखने वाला
इस्करियोत यहूदा, हाय मैं पैसा रखता हूँ, मैं बड़ा हूँ। ये सब में घमंड आ गया था कि जब यरूशलेम तक पहुँच जाएंगे हमको तो कुछ ना कुछ पोजीशन मिल जाएगा। और इसीलिए वो लोगों के बीच में वाद विवाद हो रहे हैं। और कई बार हुआ है, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, ये वाद विवाद कई बार इनके बीच में हुआ है। और अभी आखिरी में वो चुप नहीं रह सकते हैं, और इसीलिए प्रभु के पास आके बोले कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। और इस समय में प्रभु यीशु क्या किया, एक बच्चे को उठाया और बोला, जब तक तुम उन बच्चे जैसे ना बनो तो तुम स्वर्ग राज्य प्रवेश नहीं कर सकते हैं। और स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन है? स्वर्ग राज्य में जाने के लिए क्वालिफिकेशन क्या है? MA BEd करना है, डॉक्टरेट करना है, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? सिंपल सा, उद्धार, सिंपल सा, अपना पाप को कबूलात कर लेना और प्रभु यीशु को ग्रहण करना। और बच्चे ये चीज़ अपना जीवन में करते हैं और कर सकते हैं। और प्रभु यीशु जब इस बच्चे को उठाया, वो कितना उम्र का हुआ होगा? यहाँ पे जो शब्द यूज किया गया है उस बच्चे के बारे में, पीडियोन शब्द यूज किया गया है। पीडियोन का मतलब ये है कि ग्रीक लेक्सिकन में आप जब जाएंगे, वो 7 साल से कम उम्र का बच्चा, इसका मतलब 7 साल के कम उम्र का बच्चा परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकता है। और दूसरा एक वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है, तो हम देखते हैं कि मत्ती 18 में, और इसमें भी कई बार 6 से 7 बार बालों को, नाना वालों को, बालों को, नाना वालों को सब इस्तेमाल किया गया है। और इसमें से 2 वर्ड ऐसे है कि एक तो पीडियन है और दूसरा है मिक्रोस। मिक्रोस से हम माइक्रोस्कोपी का नाम आया है। माइक्रोस्कोपी में क्या करते हैं? हम ब्लड रिपोर्ट दिखाते हैं ना, ब्लड रिपोर्ट को हम परीक्षण करते हैं, और जब हम ब्लड रिपोर्ट परीक्षण करते हैं तो वहाँ से हमारा बीमारी का पता चलता है। तो इसका मतलब मिक्रो जो है, छोटे से छोटा बहु जीणु, वो भी क्या कर सकते हैं? परमेश्वर से विश्वास कर सकते हैं। एक सर्वे से बताया गया है, बर्ना रिसर्च ग्रुप, उन्होंने एक सर्वे किया है कि कौन सा उम्र में कितने लोग प्रभु को ग्रहण करते हैं। और इसमें उन्होंने ये बताया कि 0 से 4 उम्र का जो बच्चे हैं, जो प्रभु को ग्रहण करने वाले हैं, 1%। यदि आप 4 साल तक के बच्चे को आप सुवार्ता देंगे तो 1% वो ग्रहण करेंगे। 4 से 14 साल का उम्र में जो बच्चे प्रभु को ग्रहण करते हैं वो 85%, 85%। और 14 साल से 30 साल के उम्र में वो 30% बिलीव करते हैं। 30 जन, 100 में से 30। और 30 उम्र से ज़्यादा, 100 साल को पकड़ लो, तो उसमें से जो प्रभु को विश्वास करते हैं वो केवल 10%, केवल 10%। ये बर्ना रिसर्च ग्रुप का ये बताया गया है। तो हमारा मंडली में कौन सी सेवा ज़्यादा चलता है? कौन सी एज ग्रुप में सेवा ज़्यादा चलता है? 0 से 4 साल तक, और 4 साल से 14 साल तक, और 14 साल से 30 साल तक, और 30 साल से बुजुर्ग तक। सब सेवा इम्पोर्टेंस है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन जो ज़्यादा तौर से जो विश्वास कर सकते हैं, प्रभु में आने वाले हैं, वो तो 4 से 14 साल का बच्चे हैं। यदि हम उन बच्चे को ध्यानपूर्वक प्रभु की बातों को सिखाते हैं तो वो लोग प्रभु में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वो ही आने वाला कलीसिया है। फ्रांसिस सेवियर जो जेसुइट मिशनरी था, उन्होंने ऐसे बोला कि मुझे 5 साल का बच्चे को मेरे हाथ में दे दो, और इसके बाद आपको जो भी करना है आप कर लीजिए। क्योंकि ये इतना विश्वास था कि 5 साल का बच्चे को वो प्रभु में ऐसा बढ़ाएगा कि वो अपना जीवन काल कभी भी वो प्रभु को नहीं भूलेगा। प्रिंस ऑफ प्रीचर चार्ल्स स्पर्जन, उन्होंने ऐसे बोला है,
यदि 5 साल का बच्चे को सही सलाह सूचना दिया जाए और प्रभु के बारे में बताया जाए तो वो बड़े जैसे निर्णय को ले सकता है। तो बच्ची की सेवकाई सबसे इम्पोर्टेंस है। हम बच्ची को कभी भी धिक्कार नहीं देना चाहिए। और यहाँ पे मत्ती 18:6 में क्या लिखा गया है? मत्ती 18:6 कोई जो पढ़ी है अभी, कलीसिया में से कोई पढ़ी है? कोई भी पढ़िए। ओके, यहाँ पे ये बताया गया है कि जो मेरे पर विश्वास करते हैं, यूहन्ना 3:16 में लिखा गया है, जो वर्ड विश्वास, वही विश्वास का शब्द इधर भी लिखा गया है। पिस्तियोते, विश्वास, जो मेरे पर विश्वास करता है, कोई ठोकर का कारण बने तो उसको क्या करना है? घंटी लगा करके जाके समुद्र में डूब जाना है। घंटी आपका चर्च में बहुत बड़ा सा है ना, बाजू में। आप में से कोई भी बच्चे के विश्वास में ठोकर बनते हैं तो घंटी आपका चर्च में है। उसको ले जाके कहाँ करना है? समुंदर, आसपास में समुंदर नहीं होगा, नदी होगा, है ना, उधर जाके डूब जाइए। मैं नहीं कह रहा हूँ, माफ़ करना, प्रभु के वचन इतना सीरियस लेते हैं बच्चों के बीच में। जो बच्चे प्रभु पर विश्वास करते, कैसे ठोकर खाते हम, हाँ ये कहाँ प्रभु को विश्वास किया होगा, ये तो रोज़ ऐसा करता है, ये तो इसका ऐसा हालत है, ये कहाँ विश्वास कर सकता है। हम बच्चे को जब विश्वास करते हैं, हम सोचते हैं कि एक बड़े लोगों के जैसे मैच्योर हो जाए। क्या आप भी विश्वास में अभी भी मजबूत है? आप भी मजबूत है? नहीं। तो हम बच्चे से कैसे एक्सपेक्ट करेंगे 100%? हम सब प्रभु में क्रम अनुसार बढ़ते हैं और इसीलिए हमें बच्चे को ठोकर का कारण नहीं बनना है। और जो ठोकर का कारण बने उसको क्या बोला है? जिसका एक आंख ठोकर का कारण बने तो उसको खींच के फेंक दे, जिसका एक पग ठोकर का कारण है तो उसको काट के, ऐसे शब्द यूज किया गया है। और आगे जब हम उसमें पढ़ते हैं मत्ती 18:14 कलम में, उन नाना में थी एक भी ना था हमारे आकाश में पापनी इच्छा न थी। परमेश्वर नहीं चाहता है कि एक भी बच्चे क्या हो पाए? नाश होने पाए। ये परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की इच्छा। और इसमें हम देखते हैं कि एक गेटा के उदाहरण दिया गया है। 99 गेटा है लेकिन एक क्या हुआ गया है? खो गया है। आज प्रभु उस ખોવાયેલું શોધવા માટે આવ્યા છે। ખોવાયેલું શોધવા તથા તારવા માટે સારું માણસનું દીકરું આપ્યું। परमेश्वर चाहता है कि हर बच्चे प्रभु को जाने, हर बच्चे प्रभु को जाने। खाली चर्च के बच्चे नहीं, चर्च की बाहर। आप लोगों के प्रयास ये होना चाहिए कि चर्च से बाहर जितने बच्चे हैं उस बच्चे को हम कैसे रीच करें जो वो भी प्रभु को जाने और प्रभु के परिवार के शामिल हो जाए। कौन सा दिन था हम हमारा बच्चे को प्रभु के साथ बढ़ने के लिए मदद किया? कौन सा वो आखिरी दिन था जब हम प्रभु के सामने हमारा बच्चे की उद्धार के लिए रोए थे? कौन सा वो दिन था हम परिवार के रूप में साथ में बैठे हुए प्रार्थना किए? कई सारा परिवार में ये चीज़ नहीं होता है। आज परिवार बिगड़ रहा है, आज परिवार टूट रहा है, डिवोर्स बहुत बढ़ता जा रहा है। मैरिज तो हुआ 2 साल के बाद परिवार खत्म। क्यों? क्योंकि हमने परिवार को सही मायने में आगे नहीं पाया, हमारे बाल बच्चे को हमें ध्यान नहीं दिया, वो प्रभु की भय में नहीं सिखाया। इसकी वजह से ये तमाम चीज़ हो रहे हैं। जैसे कि हम पुनर्नियम में पढ़ा कि यदि हम ये तमाम चीज़ करेंगे तो हम क्या होंगे?
प्रॉस्परस होंगे, आगे बढ़ेंगे। यदि हम ये चीज़ नहीं सिखाएंगे तो हम उस विधर्मी लोगों के साथ शामिल हो जाएंगे और हमारा बाल बच्चे के जीवन बर्बाद हो जाएगा। निर्णय हमारा पास है, हम कैसे हमारा बाल बच्चों को आगे ले जाना चाहते हैं। प्रभु चाहता है कि हर एक बच्चे प्रभु को जाने, ये प्रभु की इच्छा है। क्या ये इच्छा आपकी भी है, मेरे है? आइए हम प्रार्थना करें।